Good morning, everyone. I'm Rajdeep Singh from SIRT Excellence. Today, we are going to start a new topic of Unit 2, that is VLIW architecture. So, VLIW, this is an abbreviated form of very long instruction word architecture. It is actually this VLIW architecture is a special case of processor which is generalized from two concepts. First one is horizontal microcoding, and second one is superscalar processing. Now, what is actually is a VLIW machine? So, VLIW machine, as its name suggests, that it is using an instruction which is of hundreds of bits. Its instruction word is having hundreds of bits of in length, which is executed by multiple functional units that are used concurrently. Now, these all functional units share the use of common register file, and different field of long instruction words carry the codes that is to dispatch from, to different functional units. Now, program written actually what is very long instruction word architecture or very long instruction word machine. हम बहुत सारे शॉर्ट इंस्ट्रक्शन वर्ड्स को कंपैक्ट कर देते हैं और एक बड़ा इंस्ट्रक्शन वर्ड बनाते हैं और एक पैरेलल प्रोसेसिंग मशीन का यूज करके जिसमें हम मोर देन वन फंक्शनल यूनिट्स यूज करते हैं, उसका यूज करके हम इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. So in this block diagram, you can see what is VLIW architecture. VLIW architecture is nothing. I'm again saying VLIW is very long instruction word. बिल्कुल जो नाम है वही इसकी डेफिनेशन है. हम एक बहुत बड़े इंस्ट्रक्शन को, ये एक ऐसी मशीन है जिसमें एक इसका इंस्ट्रक्शन वर्ड जो होता है वो हंड्रेड्स ऑफ बिट्स का होता है. इस लॉन्ग इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हम मोर देन वन फंक्शनल यूनिट्स का यूज करते हैं. जैसे आप देख रहे हैं, आपके पास लोड एंड स्टोर यूनिट है, फंक्शनल पॉइंट ऐड यूनिट अलग है, इंटीजर एलयू अलग है, ब्रांच यूनिट अलग है, एंड सो ऑन. सो देयर आर मेनी डिफरेंट फंक्शनल यूनिट जिसका अलग अलग टास्क है, वो कॉन्करेंटली वर्क करता है. और इस एक नीचे आप देखिए एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बना हुआ है VLIW इंस्ट्रक्शन. इसमें पहला जो आपको पोर्शन दिख रहा है दैट इज लोड एंड स्टोर ऑपरेशन. हम इसमें करते क्या है कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस के एक तरह के ऑपरेशंस को कंपैक्ट कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन के लोड एंड स्टोर ऑपरेशन को एक साथ कंपैक्ट कर लिया, उनके फंक्शनल पॉइंट एडिशन ऑपरेशन को एक साथ कंपैक्ट कर लिया, मल्टीप्लाई ऑपरेशन को एक साथ कंपैक्ट कर लिया, ब्रांच टाइप ऑपरेशन को एक साथ इनकॉर्पोरेट कर लिया, and then we distribute, or we can say we divide these instructions into different functional unit, और concurrently हम उस चीज को execute करते हैं by use of a large register file. So this is a VLIW machine. This is a very small concept which you should have to remember. Now, next main topic of this unit is memory hierarchy. Now, every machine which we are using is following a memory hierarchy. Whatever storage devices you are using in that machine, like register, caches, main memory, disk devices, or tape units, or anything which stores some data, comes under memory hierarchy, and it should have to follow the rules of memory hierarchy, and it should be organized in a hierarchical form. Because if it does not follow this hierarchy, that machine will not work. Okay. This hierarchical organization is characterized by 5 parameters. कोई भी मशीन है, अगर हम उसमें स्टोरेज डिवाइस यूज कर रहे हैं, तो दैट स्टोरेज डिवाइसेस शुड बी अरेंज्ड इन अ हायरार्की, एंड इट शुड फॉलो द रूल्स ऑफ दैट मेमोरी हायरार्की. और इस मेमोरी हायरार्की के को हम 5 पैरामीटर से कैरेक्टराइज करते हैं जो आपके सामने दिए हुए हैं. फर्स्ट वन इज एक्सेस टाइम, जिसको हम TI से रिप्रेजेंट करते हैं. मेमोरी साइज, जिसको हम SI से रिप्रेजेंट करते हैं. कॉस्ट पर बाइट, जिसको हम CI से रिप्रेजेंट करते हैं. ट्रांसफर बैंडविड्थ, जिसको हम BI से रिप्रेजेंट करते हैं. और यूनिट ऑफ ट्रांसफर, जिसको हम XI से रिप्रेजेंट करते हैं. I hope you all know the meaning or definition of these 5 parameters, but then also I'm defining it in brief. So what is access time? Access time is the time taken to access some data from a type of any type of memory.
कितना समय लगेगा हमें, सपोज हमें चाहिए x की वैल्यू, दैट x की वैल्यू इज स्टोर्ड इन सम लेट्स से हार्ड डिस्क, सो कितना टाइम लगने वाला है मुझे उस x की वैल्यू को उस हार्ड डिस्क से फेच करने में, दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सेस टाइम. So access time of one memory is different from access time of another memory. अगर वही x की वैल्यू RAM में स्टोर्ड है, मेन मेमोरी में स्टोर्ड है, तो मुझे कम टाइम लगेगा बिकॉज RAM की स्पीड फास्ट होती है, एक्सेस टाइम फास्ट होता है. सो एक्सेस टाइम ऑफ एवरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस इज डिफरेंट. ठीक है, तो पहला पैरामीटर ये हुआ. दूसरा इज मेमोरी साइज. आपके मशीन में अगर आप ध्यान दें तो जो भी स्टोरेज डिवाइसेस आप यूज कर रहे हैं उसकी मेमोरी साइज भी अलग अलग होती है. क्या आपने कोई मशीन देखी है जिसमें हार्ड डिस्क और रैम की साइज बराबर हो? नेवर. ओके. क्या आपने कोई मशीन देखी है जिसमें कैश और हार्ड डिस्क की साइज बराबर हो? नेवर. सो मेमोरी साइज इज आल्सो अ पैरामीटर जो एक हायरार्किकल फॉर्म में मेमोरी को ऑर्गेनाइज करता है. Third one is cost per byte. Since cost per byte of different memory is different, एक hard disk of some 1 TB will cost around 3000 to 4000, but a RAM of 1 TB will cost around, don't know, it will be much higher than this 3000 4000 price. So cost per byte of different type of memory will be different. So this is the third parameter which will differentiate, or which will arrange the memory, different memory devices into a hierarchy. The fourth thing is transfer bandwidth. So every memory has a transfer bandwidth. आप सबने ऑब्जर्व किया होगा कि whenever you are copying a data from USB to hard drive, first scenario, and whenever you are copying data from hard drive to memory, in both the scenario bandwidth is different, speed different होता है. एक केस में आपका डेटा जल्दी ट्रांसफर होगा, एक केस में डेटा स्लो ट्रांसफर होगा. तो ट्रांसफर बैंडविड्थ हर मेमोरी की अलग होती है. कितने बाइट पर सेकंड या कितने बिट्स पर सेकंड ट्रांसफर करता है कोई मेमोरी, ये हर मेमोरी की डिफरेंट होगी. नाउ नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ ट्रांसफर. नाउ यूनिट ऑफ ट्रांसफर इज द मिनिमम और the unit by which a memory transfers its data. Suppose अगर हम रजिस्टर की बात करें तो it transfers the data bit by bit, because उसको वो होल्ड इतना कर पाता है. एक यूएसबी की बात करें तो हो सकता है वो केबी या एमबी पर सेकेंड्स में करता है डेटा ट्रांसफर, and so on. So unit of transfer is also different for different memory devices. Now in this block diagram you can see how a memory is organized in, memory devices are organized in hierarchy. So सबसे पहले ऊपर आप देख रहे हैं कि I have drawn a block which is considering a register which is in CPU. Okay, I will discuss why this block of register is drawn separate to this rest of the pyramid. Now, first topmost memory device which is used is cache, then main memory, then disk storage, then backup storage. Now, this you can see the left hand side arrow. As we are going downside the level, our capacity is increasing and access time is also increasing. कैश को एक्सेस करने में बहुत कम समय लगता है, फास्ट मेमोरी होती है. वहीं बैकअप स्टोरेज को या डिस्क स्टोरेज को एक्सेस करने में ज्यादा समय लगता है. एंड राइट हैंड साइड पे अगर आप एरो को देखें, as we are going up the level, the increase, there is an increase in cost per byte. जैसे जैसे हम लेवल में ऊपर जाते हैं मेमोरी का कॉस्ट पर बाइट महंगा होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम लेवल 0 जो आप सबसे ऊपर है, देन लेवल 1, देन लेवल 2 एंड 3 एंड 4. और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं हमारी कैपेसिटी भी इंक्रीज होती जाती है मेमोरी की. Now, why I have drawn the block of register different from this pyramid? So registers को कई ऑथर्स रजिस्टर्स को मेमोरी हायरार्की का पार्ट नहीं मानते हैं. Why? Because registers do not have their own you can say access time. उसका खुद का कोई स्पीड नहीं होता है. ठीक है, यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है
यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं उनको रिलेट किया गया है. Memory devices at lower level are faster to access, smaller in size, more expensive per byte with a higher bandwidth. जो भी मैंने बताया उसी चीज को हमने सिंबॉलिकली यहाँ पे लिख दिया है कि जो लेवल में ऊपर होगा उसका टाइम एक्सेस टाइम कम होगा, जो नीचे होगा वो ज्यादा होगा. साइज जो ऊपर है लेवल में वो कम होगा, जो नीचे है वो ज्यादा होगा, एंड सो ऑन. सो दिस इज वेरी सिंपल. जो अभी मैंने बताया उसको बस सिंबॉलिकली मैंने यहाँ लिख दिया. नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट रजिस्टर्स. सो रजिस्टर्स आर पार्ट ऑफ प्रोसेसर. Okay, register transfer operations are directly controlled by the processor, एंड इसका जो ट्रांसफर होता है वो डिपेंड करता है प्रोसेसर की स्पीड पे. दैट इज वन क्लॉक साइकिल ऑफ द प्रोसेसर. इसका खुद का कोई एक्सेस टाइम नहीं, वो ट्रांसफर बैंडविड्थ नहीं होती है, जिसकी वजह से कई डिजाइनर्स इसको मेमोरी हायरार्की का पार्ट नहीं कहते हैं. बट then also there are literatures which consider it as part of memory hierarchy. Why? Because it is a storage device. It is used to store some data, therefore it will be considered in as a part of memory hierarchy. Now second type of memory storage device was cache. So cache is normally used to deal with memory access latency. जो delay होता है main memory या hard disk से किसी data को fetch करने में, उसको खत्म करने के लिए हमने intermediate एक memory use की जिसको हमने बोला cache. Now this cache can be used at multiple level as per requirement and speed, जहां पे हम रिसेंटली यूज डेटा को स्टोर करते हैं, और इफ दैट डेटा इज रेफरेंस्ड फर्दर इन फ्यूचर उसको हम तुरंत एक्सेस कर सकते हैं विथ लेस डिले. नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइस इज मेन मेमोरी. द मेन मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी मेमोरी. ये बहुत लार्ज होती है कैश के कंपैरिजन में. इसको रैम चिप्स का यूज करके इम्प्लीमेंट किया जाता है, एंड इट इज मैनेज्ड बाय मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट व्हिच इज ऑपरेटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. Now talking about disk drive and backup storage. So disk storage जो है that is highest level of online memory. Now there are two types of memory, online memory and offline memory. बैकअप स्टोरेज, ये डिस्क स्टोरेज में क्या डिफरेंस है? देखिए डिस्क स्टोरेज इज ऑलवेज अटैच्ड टू द कंप्यूटर. व्हेनेवर यू टर्न ऑन द कंप्यूटर, दैट डिस्क ड्राइव इज एक्सेसिबल. इट इज ऑलवेज ऑनलाइन. व्हेनेवर कंप्यूटर इज ऑन, इट कैन बी एक्सेस्ड एनी टाइम. बट अगर हम बैकअप स्टोरेज की बात करें, जैसे हमारा ऑप्टिकल डिस्क, सीडी ड्राइव वगैरह, ये ऑफलाइन मेमोरी में आते हैं. व्हाई? बिकॉज इसको हम आर्काइवल के लिए यूज करते हैं, बैकअप के लिए यूज करते हैं. ये कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट करते साथ ही एक्सेसिबल नहीं होते, इन्हें हमें प्लग इन करना पड़ता है, इन्हें हमें इंसर्ट करना पड़ता है, देन वी आर एबल टू एक्सेस दोज बैकअप स्टोरेज. सो दीज आर दी हाईएस्ट लेवल ऑफ द मेमोरी, जिनका कैपेसिटी ज्यादा होता है, एक्सेस टाइम भी ज्यादा होता है, और कॉस्ट पर बाइट भी बहुत कम होता है. So these are the level of memory hierarchy. So in next class we'll discuss about the properties of memory hierarchy, that is inclusion, coherence and locality, which is very important topic of this unit. For now this is done. Thank you so much.